ڈیزرو کرتی ہیں. سکینہ سمو اور اس کے ساتھ ذرا جوان نسل سے ہیں فائزہ. آپ سب کی پسندیدہ ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں, آپ ان کو سراہتے ہیں, اور یہ بھی آج آپ سے گفتگو میں بتائیں گی کہ یہ کیا محسوس کرتی ہیں اور کیا چیلنجز ہیں جس کو یہ حل کرنے کے لیے یہ چاہتی ہیں کہ وہ حل ہوں. اور اس کے ساتھ ہمارے فدا صاحب ماشاءاللہ یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ میڈیا کی دنیا کا نام ہے, اخبار کی دنیا کا نام ہے, آپ سب ان کو جانتے ہیں. یہ لکھتے ہیں اور ایسے ایشوز کو سامنے لاتے ہیں جو ہمارے سماجی بھی ہیں اور ہماری جو ہیں ہمارے ذہنوں کی تفریح طبع کے لیے بھی وہ ہمیں کام دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. میں اب زیادہ نہیں بات کرنا چاہوں گی, میں چاہوں گی کہ یہ لوگ بات کریں اور آپ سنیں. میں سمینہ جی آپ سے شروع کروں گی. آپ نے آپ کا جو سفر ہے, جو آپ نے ڈرامہ کے ذریعے, آپ نے چھوٹی اسکرین کے ذریعے جو کچھ دیکھا ہے, جو کچھ سہا ہے, جو کچھ ہمیں دیا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اوور دا ٹائم آپ اب تک جو کرنا چاہتی تھیں, جو آپ کنوے کرنا چاہتی تھی, وہ اب دے پائی ہیں؟ تھینک یو, بہت شکریہ. اتنا آپ نے لمبا سا سوال پوچھ لیا ہے اور اتنے مشکل میں مجھے ڈال دیا ہے کہ کیا میں وہ جو کچھ کرنا چاہتی تھی یا جو میں ایکسپریس کرنا چاہتی تھی کیا میں وہ کر پائی ہوں یا نہیں کر پائی ہوں. کسی حد تک تو ہر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہم کر ہی لیتے ہیں, مگر مکمل طور پر جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم کر پائیں, قسم کا جو کچھ بھی ہم کہانی سنانا چاہتے ہیں, جس انداز سے سنانا چاہتے ہیں وہ ہو پائے, وہ تو مشکل کام ہوتا ہے. اور ابھی تک جستجو میری جاری ہے کہ جو کچھ کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرتی جاؤں. مگر ایک چھوٹی سی بات, جو میرے بڑی خواہش تھی کہ میں کامیڈی میں کام کروں, تو وہاں پر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو ہنسانے میں, کچھ لوگوں کی تفریح کے لیے جو ڈرامے کیے, جیسے کہ فیملی فرنٹ تھا جو کہ میری اپنی پروڈکشن بھی تھی اور میری پہلی پروڈکشن تھی, تو اس میں تھوڑا بہت کامیاب ہوئی ہوں. باقی جستجو جاری ہے کہ اچھے سے اچھا کام کریں تاکہ جو بھی انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہمارے ملک میں بنی ہے, کیونکہ اب بہت ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں, سارے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں. جہاں جہاں اردو اسپیکنگ لوگ ہیں, جہاں ابھی میں کینیڈا بھی گئی تھی, وہاں پر بھی بہت لوگوں نے ذکر کیا اور کہا کہ ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں. تو وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ہم نے کام کیا ہے, ترقی ہے کہ ہمارے ڈرامے جو ہیں اس میں تھوڑا بہت کردار ہم سب یہ ادا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بھی ڈال دیں. اینڈ وی آر ویری فارچونیٹ کہ جو بھی حصہ ڈالا ہے اس کا نتیجہ اچھا نکلا ہے. آپ نے بہت تھوڑا نہیں, آپ کا بہت حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے, اور جس پہ ہم سب کو فخر ہے. سکینہ سمو صاحبہ, یقیناً آج کا ڈرامہ بھی جو ہے وہ پاکستانی ڈرامہ وہ بہت آگے کی تصویر اور بہت آگے کے مسائل بھی بیان کر رہا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ جو گمبھیر سماجی مسائل جس پہ مصنف کی وہ نبض پہ مصنف کا ہاتھ ہوتا تھا, انگلی ہوتی تھی, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مسائل آج کے ڈرامے میں دکھائے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں پرسنلی, کیونکہ آج کل صرف جو گھریلو مسائل ہیں ان پر باہر کے مسائل نہیں, گھریلو جو ہے وہ مسائل دکھا رہے ہیں, ساس بہو نند اور اس قسم کے ڈرامے, اور ان کو ریٹنگ بھی مل رہی ہے, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. تو میں اتنا ہی کہوں گی, مطلب یہ کہ لیکن وقت کے ساتھ لوگ بدلتے بھی ہیں. تو اگر ماسز یہ چاہتے ہیں
کہ اس قسم کے ڈرامے دیکھیں تو ظاہر ہے ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، وہ اس میں بناتے ہیں، اور ہماری جاب ہے جیسے سمینہ کی، میری، یا ہمیں تو کرنا ہے. اگر ایک ظالم ساس ہے تو ظاہر ہے جاب ہے ہماری، تو کرنا پڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن وقت کی ضرورت ہے، یہ جیسے ڈرامے بن رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اچھے بھی بن رہے ہیں، اکا دکا اچھا بھی آ رہا ہے، جو کہ اگر باہر کے ملکوں میں بھی دیکھیں، ایران اور ٹرکی سے انڈیا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ان میں بھی یہ آ رہا ہے کہ 80% جو ڈرامے ہیں مین سٹریم کے کمرشل ڈرامے وہ ایسے ہی ہیں. 20% جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے آف بیٹ ہوتے ہیں، جس میں باہر کے مسائل دیکھتے ہیں، تو اس میں الگ الگ سبجیکٹس ہوتے ہیں. بہت شکریہ. پھر آپ کی طرف آئیں گے، اور سامعین حاضرین آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ ذرا خاموشی اختیار کریں، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ ایکو ہے، اور کچھ آپ لوگوں کی آپس میں بات کی وجہ سے وہ بات پوری طرح آپ تک پہنچ نہیں پا رہی. تو یہ پلیز ذرا خاموشی سے بیٹھیں، جو لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں. فائزہ، وقت کے ساتھ ہر چیز تبدیل ہونا چاہتی ہے، اور سوات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ اس زمانے کے حساب سے آج کے جو مسائل ہیں، جو ٹیکنالوجیکل ورلڈ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے نئے نئے مسائل آ گئے ہیں، اور بات جو ہے کچھ کہنے کا وقت نہیں، یہ کچھ نہ کہو خاموش رہو، اے لوگو خاموش رہو، ہاں اے لوگو خاموش رہو، وہاں سے ہوتی ہوئی آ گئی سب کہہ دو. تو اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سب کہہ دو، اس میں سب کہہ دینا چاہیے، یا کچھ نہ کہنے سے زیادہ بات جو ہے وہ پہنچتی ہے اچھے طریقے سے؟ جی فائزہ. بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہ مجھے یہاں بلایا گیا، اور میں نے ایکچولی کافی سارا ٹائم دیکھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے شروع تو پی ٹی وی سے کیا تھا، اور پھر اب تو پرائیویٹ پروڈکشن کا دور ہے. لیکن جو آپ کی بات ہے میں سمجھ گئی ہوں کہ پہلے شاید کہنے میں تھوڑا جو ہے وہ سینسرشپ کے مسئلے ہوتے تھے، وہ مسئلے آج بھی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہر بات آج آپ کھلے عام کہہ سکتے ہیں جو پہلے نہیں کہہ سکتے تھے. اس وقت بھی بہت سی باتیں ہیں جو آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہاں یہ ہے کہ چونکہ موضوعات ہر ایرا ہر ڈیکیڈ کے الگ ہوتے ہیں، تو وہ مسائل بھی الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا سب باتیں کہہ دینا صحیح ہے کہ نہیں، تو اس وقت بھی آزادی ہے. آئی تھنک آج سے کچھ سال پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ میڈیا کو زیادہ آزادی تھی بات کہنے کی. اب میں کوئی سیاسی بات کہنا نہیں چاہتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرویز مشرف کے ٹائم پر میڈیا میں حد سے زیادہ ہم لوگوں کو آزادی دی گئی تھی، جو کہ ضیاء الحق کے دور میں نہیں تھی. اس وقت ڈھکی چھپے انداز میں آپ بات کرتے تھے. مشرف صاحب کے دور میں آپ بہت زیادہ کھلے عام بات کرتے تھے. ایون ہم اداکاروں کو بھی بہت آزادی تھی ہر طرح کا کردار کرنے کی، ہر طرح کی کہانیوں کو ڈرامہ بنانے کی، ہر طرح کے لباس پہننے کی، جو کہ اب آہستہ آہستہ پھر ایک مائلڈ طریقے سے دوبارہ ہم پر وہ چیز حاوی ہے کہ ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کہانیوں پہ ڈرامے بنائے جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سوچ سمجھ کے ہمیں اس طرح کی ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو آج کے دور میں ہاں سوشل میڈیا پہ شاید پھر بھی زیادہ آزادی ہے، مگر جو ٹیلی ویژن ہے اس پر ذرا واپس کم آزادی ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ. فدا صاحب یہ بتائیے، آپ کی طرف اب میں آنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ کی، تو یہ فن کے حوالے سے جب ہم دیکھیں تو پرفارمنگ آرٹ میں یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے. تو اس میں کس حد تک یہ کامیاب ہوتا ہے معاشرے کو تھوڑا سا صحیح سمت دکھانے میں یا پھر گمراہ کرنے میں؟ دونوں ذرا بتائیے گا ہمیں. دیکھیے، میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج 3 وومن آف سبسٹینس میرے ساتھ تشریف فرما ہے،
اور یقین جانیے کہ इन लोगों की वजह से, हमने इन लोगों की वजह से पाकिस्तान की धरती को इतना वसी पाया है. एक बेबी बाजी हैं जिनके जून माह होने से आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पूरा कल्चर, जो माँ होती है वो कैसी होती है, बेबी बाजी जैसी होती है. वाह जी वाह. इन्होंने अपनी अदाकारी के वो रंग दिखाए हैं हमें. शोएब हाशमी की टीम थी, टाल मटोल, और उस ज़माने से लेके सलीमा आपा, मुनीज़ा आपा, नवीद शहजादा आपा, प्रिंस रोड की नीलोफर, आम एक लड़की जो वालिद मरहूम आबिद अली साहब ने वो रोल किया था. और ये ऐसे लोगों को देखकर सेंस ऑफ एस्थेटिक्स मजबूत होता, उस पर हमारी ग्रिप होती. हम जब बात करते हैं कि जी शबाना आज़मी है, कि जूलिया रॉबर्ट्स हैं, निकोल किडमैन हैं, वंस अपॉन ए टाइम जीना लोलो बर्जीडा थी, लेकिन अब ये जो हमें अपने धरती पे जो मोहब्बत, जो खुलूस टेलीविज़न के ज़रिए मिला है, इन लोगों ने हमें एजुकेट किया है. मुनव्वर सईद साहब मुझे याद आ रहे हैं, बेबी बाजी यहाँ तशरीफ़ फरमा. और इन लोगों की वजह से हमने सीखा कि ड्रामा क्या होता है. फारिग औकात में सकीना, अदी सकीना ये फिल्म के बारे में, क्राफ्टिंग के बारे में बताती रहती हैं. इन्होंने फिल्म बनाई इंतज़ार, मैं कहता हूँ वो सदियों की फिल्म है. जब समीना आपा के आप एक्सप्रेशंस देखें, कौन सी वो आंख होगी जो रोई नहीं होगी. नवीदा साहब, ये एक बहुत बड़ी बात. हम दोबारा आपकी जी. तरफ आएंगे. मैं समीना साहिबा से पूछना चाहती हूँ, जब हम बात करते हैं ड्रामा की, तो हम ना चाहते हुए भी हम पीटीवी की तरफ पलट के देखते हैं. इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है जो हम ना करें, क्योंकि उस ज़माने ने, उस अहद ने, उस दौर ने जो कुछ हमें दिया है वो अपनी मिसाल आप है. समीना जी, ये बताइए कि जब पीटीवी के ड्रामे आते थे तो इंतहाई जबर के ज़माने में भी एक मजबूत औरत दिखाई जाती थी, और जब वो कहती थी कि मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, और वो अपने हिसाब से अपने औरतपन की वजह से कमज़ोर अपने आप को नहीं फील करती थी, क्या आज के ड्रामे में औरत को उस तरह पेश किया जा रहा है या उसके ऑपोजिट पेश किया जा रहा है? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी. बहुत टाइम से पूछे. आप दोनों से आप बारी बारी. देखिए, जो उस वक्त काम हो रहा था और जबर के दौरान में हो रहा था, आप देखिए, ये भी देखिए कि वो लोगों की ट्रेनिंग कहाँ से थी. उनकी ट्रेनिंग, जबकि बहुत एक डेमोक्रेटिक ओपन सोसाइटी थी, वहाँ से वो ट्रेन होकर आए और फिर जबर के वक्त में उन्होंने बहुत अच्छी तख्लीक, लिखा भी बहुत अच्छा गया और काम भी बहुत अच्छा हुआ. वो एक ज़माना था. अगर हम ये कहें कि आजकल के ज़माने में कुछ नहीं हो रहा और औरत को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से या बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से दिखाया जा रहा है, तो मैं इससे एग्री नहीं करूँगी. मेरे ख्याल में कि बहुत से ऐसे ड्रामे हैं और हर ड्रामे के अंदर भी हमें बहुत ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पर औरतों को एक पॉजिटिव और एक स्ट्रेंथ में दिखाया जाता है. और क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस है घरेलू ख़वातीन के ऊपर, तो उसके अंदर भी मुझे तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं कि कहानियाँ जो हैं वो हम औरतों की कहानियाँ हैं, भले घर के अंदर हैं. हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं ना, हमारा काम आपस में ही मेल जोल है, तो वही हमारी कहानियाँ जो हैं वो ट्रांसलेट होकर सामने नज़र आनी शुरू हो जाती हैं. ये भी मैं कहना चाहूँगी कि कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी, अभी आप केस नंबर 9 की मिसाल ले लें,
पामाल की मिसाल ले लें जो बहुत रीसेंट है, वहाँ पर आप देखते हैं कि क्या मसले डिस्कस हो रहे हैं और किस तरह से जो औरतें वहाँ पर उन ड्रामों की जो हीरोइन है जिनके साथ जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके के साथ उनको डील किया जा रहा है. तो आई एम वेरी वेरी होपफुल. और मुझे यूँ लगता है जैसे कि जो हम ऑफ कोर्स हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, और जब तक हम बेहतरी की तरफ और उसकी जुस्तजू में नहीं लगे रहेंगे तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते. अपनी इमेजिनेशन को हमें खोलना है, अपनी उड़ान को और आगे लेकर जाना है. मगर ये क्या, मैं ये इससे एग्री नहीं करूँगी कभी भी कि पहले जो ड्रामे होते थे वो बहुत आलीशान थे और अब जो ड्रामे हो रहे हैं वो बहुत रद्दी हैं. पहले भी बुरे ड्रामे कुछ होते थे, कुछ बहुत अच्छे थे, और अभी भी यही है कि कुछ अच्छे हैं, कुछ कम अच्छे हैं और कुछ बहुत अच्छे हैं. बहुत शुक्रिया. सकीना सुमो साहबा से यही सवाल और थोड़ा सा इसमें और भी ऐड कर दूं, क्योंकि मैं निसाई हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि औरत होते हुए जो औरत का किरदार दिखाया जाता है वो पहले मजबूत था या अब कमज़ोर हो गया है निस्बतन, ये आप बताइए. ख़वातीन व हज़रात, ये जो सेशन है और जितने बड़े लेजेंड्स स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम खामोशी से इनको सुनेंगे तो ये हमारे लिए ख़ुद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाले लोग हैं. और इनको हम आज यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे जिनको देख रहे होंगे. तो जो भी वॉलंटियर्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप डिसिप्लिन को, खामोशी को बरकरार रखने में हमारी हेल्प करें. और जो लोग खड़े हैं उनसे भवेश काइंडली आप बैठ जाएं. पीछे जो लोग खड़े हैं उन सब से गुजारिश है कि आप बैठ जाएं. अनु सोलंकी के साथ जो लोग हैं उन सब से गुजारिश है कि बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं. सुर बैठ जाएं, हम गाएंगे अभी. जी मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया. अच्छा, जी सकीना साहिबा, जी सकीना सुमो साहिबा आप. जी हाँ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं. इट्स ओके. हाँ, नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है. टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, जब मैं टीवी में आई, नूरुल हुदा शाह और हम लोग जब आए तो उस वक्त ज़िया का जो पीरियड था वो पीक पर था और माशाल्लाह का, और MRD की तहरीक चल रही थी सिंध में. अच्छा, नूरुल हुदा शाह एक प्रोग्रेसिव माइंड है, तो इसलिए नूरुल हुदा शाह अपनी जो हेरोइन को है, उसकी हेरोइन को आज़ाद कराना चाहती थी. ये जो फरसूदा रस्में रिवाजें हैं उनको आज़ाद करना चाहती थी औरत को. वो औरत उसने आज़ाद कर दी. अब फ्रीडम है, लेकिन जो औरत को पोर्ट्रे किया जाता है वो इतनी आज़ाद नहीं है. वो औरत जो बहू है वो एक्चुअली आज़ाद नहीं है. वो 30 किस्तों में मार खाती रहती है, रोती रहती है, फिर आखिरी एपिसोड में उसकी सास को फालिज हो जाता है और वो हो जाता है. अब समीना क्योंकि बाय नेचर बहुत पॉजिटिव है, तो इसलिए हर चीज़ में अच्छाई देखती हैं. मैं भी इनके फुट स्टेप्स पे जा रही हूँ कि मैं पॉजिटिवली देखना चाहती हूँ, लेकिन वक्त चेंज हो गया है. लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि बहू मजलूम रहे. तो असगर फरहादी का एक मुझे कोट याद आता है. वो एक ईरानियन फिल्म मेकर हैं. उन्होंने कहा ये ऑडियंस के साथ चीटिंग है कि आप 3 घंटे उनको सब कुछ दिखाएं और 5 मिनट का मैसेज दें. तो ये उनके साथ चीटिंग है. तो आप 35 किस्तों में उनको टॉर्चर देते हैं, ऑडियंस को टॉर्चर देते हैं, और 36वीं किस्त में जाके जो है ना मकाफाते अमल होता है. अच्छा, फ़ायज़ा से पूछते हैं. फ़ायज़ा, बस आप भी ज़रा जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि मुझे वो उधर से इंडिकेशन आ गया है कि वक्त ज़्यादा नहीं है. आप ये बताइए कि आप ये जो हम बात करते हैं कि आज की बेटी और आज की बहू जिसको दिखाया जा रहा है, आप क्या महसूस करती हैं कि ये ठीक है?
ड्रामों के हवाले से ना बात कर रही हैं। जी, हाँ, जी। बिल्कुल सही है। देखिए हर जो जिस दौर का ड्रामा होता है ना, वो उस वक्त उस माशरे की, उस दौर की अक्कासी कर रहा होता है। लिहाजा अब अगर हम आज के ड्रामे की बात करें तो आज के ड्रामे में जो औरत दिखाई जा रही है या जो मसाइल दिखाए जा रहे हैं वो आज के हैं। आप देखें, पहले जो थे वो सियासी मसाइल दिखाए जाते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स दिखाई जाती थी। आज के ज़माने में जाहिर सी बात है हमारी आबादी भी यंग है, तो उस हिसाब से आपको ख़ुद पता है कि कितनी शादियां हो रही होती हैं। इसीलिए आज के ज़माने में शादी से रिलेटेड ड्रामे बनते हैं और उसमें जाहिर सी बात है औरतों का, लड़कियों का किरदार होता है, तो वो बिल्कुल आज के ही ज़माने का है। और वही लड़की को पढ़ने दिया जा रहा है, नहीं पढ़ने दिया जा रहा, या शादी हो रही है, नहीं हो रही है, नौकरी करे या ना करे। सो इट्स ऑल रिलेटेबल जो आजकल का वक्त है उस हिसाब से। बहुत शुक्रिया। समीना जी, आपसे पूछना चाहूँगी, कोई चूँकि माहौल ज़रा गंभीर हो गया है, तो कोई दिलचस्प सा वाक़या सुनाइए जो आपने इस अपनी एक्टिंग करियर के दौरान आपको याद हो और आपको अच्छा लगा हो। कुछ ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं है, मगर थिएटर में बहुत जब मैं ड्रामे कर रही थी स्टेज के अर्लियर ऑन, और कमाल अहमद रिजवी के साथ और बाकी लोगों के साथ में, नईम ताहिर के साथ, यास्मीन ताहिर के साथ, तो उस ज़माने में कुछ बातें ऐसी हो जाती थी। एक मुझे याद है कि हम लोग स्टेज के ऊपर खड़े थे, तो ऐसे ही स्टेज था और वहाँ से एक बंदा उठा और वो आया और यहाँ मेरे करीब में कुछ फल पड़े हुए थे, ड्रामे का हिस्सा था वो, और वो उठा के ले गया। ये अलहमरा का वाक़या। अच्छा, मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं बिल्कुल सुन सी हो गई कि ये एक बंदा यहाँ मेरे पास, मतलब 800 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से किसी, वो समझे शायद ड्रामे का हिस्सा है, और उसके बाद वो लेकर चला गया। बाद में हमें पता चला कि उन 2 दोस्त वहाँ बैठे हुए थे, उनकी शर्त लगी थी कि तुम जाके वहाँ से क्या कहने लेके आओगे कि नहीं। तो इस किस्म के वाक़यात स्टेज के ऊपर तो होते रहते हैं, टेलीविज़न में ज़रा कम होते हैं, एक्सेप्ट कि हम लोग अपनी लाइनें भूल जाएं और फंबल कर जाएं और उसको रीटेक हो जाए, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। और जी सकीना सुमो साहिबा, आप से मैं अब निसाई हवाले से तो बात हो गई, आप भी कोई ऐसा वाक़या शेयर करें जो दिलचस्प हो और लोग सुनना चाहें, वो आप शेयर करें। कोई मेरे पास कोई दिलचस्प वाक़या नहीं है, चलें जैसा भी है। अभी कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, तो शायद फायजा के पास हो। फायजा के पास होगा यकीनन। ये प्रिया, नहीं मेरे पास नहीं है। वही समीना आपा की बात ठीक है कि वो रीटेक्स और फंबल्स होते हैं। वही होता है। मैंने तो माहौल को लाइट करने के लिए कहा कि आप कोई दिलचस्प बात बताएं, वरना वो फिर बहुत गंभीर मसाइल में हम शुरू हो जाएंगे। लोग आए हैं कि जी ड्रामा आर्टिस्ट आए हुए हैं, इतने बड़े बड़े, समीना जी हैं, सकीना सुमो हैं, फायजा हैं, युफिदा साहब बैठे हुए हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही उनको वो नहीं लगे कि माहौल जो है वो गंभीर सा हो गया। युफिदा साहब, मुझे लगता है आपके पास बहुत दिलचस्प वाक़यात होंगे। हाँ? आपके पास बहुत दिलचस्प वाक़यात होंगे सुनाने को। देखिए, हम लोग जो जीते हैं, सिनेवीवर्स हैं, तो आप लोगों को देख देख कर हमारी जो वो एक रोल्स को देखने परखने की नीयत वो बढ़ती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अपने पाकिस्तान की धरती में हमने ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं। शबाना आज़मी यहाँ आई तो कहने लगी कि मुझे सीढ़ियाँ बहुत पसंद था, तो मैंने उन्हें कहा कि सकीना सम्मू आपसे कम थोड़ी हैं, तो कहने लगी नहीं। मैं उनकी इंस्पिरेशन में सबसे पूछ रही थी कि सकीना कहाँ हैं ताकि मैं उनसे मिलूं। तो ये जो एतमाद है पाकिस्तान की धरती का, यहाँ के फनकारों का, यहाँ के आर्टिस्टों का, ये बहुत बड़ा कमाल है। और मैं सारा दिन इसी नहज में रहता हूँ कि कौन सा गोहर नायाब मुझे मिले तो मैं उसको हाईलाइट करूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं आपको सुनती रहूं, लेकिन मुझे पीछे से फिर इशारा आया है, तो मैं ये बस, चूंकि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि 2-2 मिनट तो और बात हो जाए. तो समीना जी, आप कोई सजेशन, कोई ऐसी बात कहना चाहें जो ड्रामे की बेहतरी के लिए हो, चाहे वो राइटर के लिए या एक्टर के लिए या जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए, कुछ भी जो आप बेहतरी के लिए कहना चाहें. मतलब हर किस्म के ड्रामे होने चाहिए, हर किस्म के एक्सपेरिमेंट होने चाहिए. इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को भी एलोकेट करें कि डिफरेंट चीज़ आए. अगर एक ही किस्म की सारी चीज़ें बनती रहेंगी तो मोनोटोनस हो जाती है. तो दुनिया में यही होता है कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को जो है ना वो एलोकेट करना चाहिए, और इस तरह एक डिफरेंट चीज़ देखने को, और स्टोरी के हिसाब से भी एक डिफरेंट चीज़ आएगी अगर आप इंडिपेंडेंट लोगों को हायर करेंगे. बहुत अच्छे. जी समीना जी, यही सवाल आपसे. यही सवाल जी, बेहतरी के लिए. जो एक चीज़ जो बहुत वाज़े नज़र आती है कि हमारे टेलीविज़न पर नहीं हो रही, वो है हमारे बच्चों के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं होते. वाह. ये बहुत वाज़े नज़र आ रहा है. पीटीवी के ज़माने में बच्चों के लिए प्रोग्राम होते थे, मगर उसके बाद में एक चैनल भी बना जो कि किड्स चैनल था. उसमें हमें बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पर कोई बच्चों के लिए काम होगा, मगर वो भी बहुत देर ना चल सका. और फिर हमने हमेशा रिक्वेस्ट और डिमांड तो करते हैं कि कुछ टाइम अपने 24 घंटों में से या 8 घंटे का जो आप स्लॉट बना रहे हैं उसमें बच्चों की तरफ भी तवज्जो दें. हमारे बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी के कार्टून या डब चीज़ें देखते हैं. हम अपने लिए कोई ड्रामे बनाने या क्विज शोज़ करने या म्यूज़िक करना, वो मुझे नज़र आता है कि नहीं हो रहा. उसकी बहुत ज़रूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया. यकीनन बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं. उनके लिए, उनकी अगर हम नहीं उनके लिए काम करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी. और फ़ायज़ा, आप चूँकि नए ज़माने की हैं तो ज़ाहिर है कि सब अच्छा है तो अब फिर भी उस सब अच्छे में से कुछ आप समझती हो कोई कमी है, वो बताइए. हाँ, मुझे ज़ाती मेरी राय है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो ड्रामे बन रहे हैं वो अच्छे तो बिल्कुल हैं, और अब कुछ अरसे से तकरीबन साल भर से मुझे लग रहा है कि काफ़ी मौज़ूआत पे बन रहे हैं, अलग अलग मौज़ूआत पे. लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे जो एक कमी महसूस होती है वो ये कि हम काम करने वाले लड़के लड़कियों के ऊपर ड्रामे ज़रा कम बना रहे हैं. जो प्रोफेशनल बाकायदा जो प्रोफेशंस होते हैं, जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनके बारे में ड्रामे जो है वो ज़रा कम बन रहे हैं. क्योंकि वो भी आखिर में, अगर आप कोई डॉक्टर, मैंने अभी एक ड्रामा किया था आपा शमीम, उसमें मेरा नर्स का किरदार था. तो वो शुरू में तो उन्होंने काफ़ी उस प्रोफेशन के बारे में बात की, लेकिन आखिर में वो किरदार वापस वही घर में चला गया और वही फिर घरेलू पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी. सो आई फील कि इस वक्त जो ज़रूरत है, उनकी बात बहुत सही है. मुझे बहुत ज़्यादा ये बात लगती है कि बच्चों के बारे में कोई कंटेंट नहीं बन रहा है. मैं बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, अगर मुझे कोई ऑफ़र हो, बच्चों के बारे में प्रोग्राम बनना चाहिए. दूसरा, जो काम करने वाले लड़के लड़कियाँ, उनके ऊपर ड्रामा बनना चाहिए वर्क इन्वायरमेंट पे, रादर देन कि वो किरदार जो है वो वापस घर चले जाएं. आई थिंक इस चीज़ की बहुत कमी है. बट आई एम श्योर, आई एम वेरी होपफुल कि कुछ अरसे में ऑफिस बेस्ड स्टोरीज या हॉस्पिटल बेस्ड स्टोरीज या पुलिस वाली उस तरह के बनने शुरू हो. बहुत अच्छी बात आपने की है फ़ायज़ा, और यकीनन बच्चों के लिए भी होना चाहिए, मुनफरिद मौज़ूआत पे भी होना चाहिए जो कि दुनिया के दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट करें. और इसके साथ साथ जैसा कि फ़ायज़ा ने कहा है कि हम लिमिटेड जो है हमारे मौज़ूआत हैं, कि जो मेरे ख़्याल में चैनल के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये समझते हैं कि हम जो दिखा रहे हैं या दिखाना चाहते हैं वो घरेलू औरतें देख रही हैं, तो वो फोकस उनका जो है वो घरेलू औरत पे होता है. जबकि दुनिया बदल चुकी है, तो फिर बदलती हुई दुनिया जो है, फिर आज की दुनिया जो है वो हमारे ड्रामों में नज़र भी आनी चाहिए.
बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया जी, बहुत सारी तालियां हो जाएं और एक ग्रुप फोटो होगा. सुल्तान और टीम आप सब आगे आ जाएं, एक ग्रुप फोटो. और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस. स्टेज वॉलंटियर से गुजारिश है कि चेयर्स और बॉक्सेस लेकर जाएं. स्टेज वॉलंटियर्स चेयर्स और बॉक्सेस ले जाएं. जी बहुत सारी तालियां एक दफ़ा दोबारा हो जाएं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. हैप्पी टू सी. थैंक यू फिदा से शाह साहब, फायजा हसन, समीना अहमद, सकीना समो. और जी ख़वातीन हज़रात, हम पाण हलूं था अॻिते. ही सोविनियर्स प्लीज़. फिदा शाह साहब, फायजा, सकीना समो, समीना अहमद जी. ये आवाज़ देर थी थे. ये लेकर खड़े हो जाएं.